दिव्यांशु जी कहाँ अब तक आए नहीं? देखिए दिव्यांशु जी को देखिए, कोलकाता। वाह क्या बढ़िया ये अपना बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है पब्लिक पॉलिसी में 17-18 को जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ। उसी में काफी सारे जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वहाँ के प्रोफेसर्स लोग आ रहे हैं। उसी में हमारी व्यस्तता हो गई थी। सर भी अभी एक मीटिंग से आए हैं, मेरी भी मीटिंग चल रही थी। अरे बाप रे। तो एनीवे शायद ये तो किसी और दिन रख सकते थे, लेकिन अब तो रख लिए। नहीं 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 सर, ये मतलब हम नहीं चाहते थे इसको डिले करना। राजीव हमसे रेगुलर ये कर रहा था, तो हम मेरा ये था कि इसको जल्दी से जल्दी करना है। अभी वर्चुअल कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग मिल करके फिर एक कोई टाइम लेके फिजिकल करेंगे। Manish ji, we can start or we wait? Yeah. Yes, sir. I think 1 minute. Someone is calling. So we'll see this video to start with, and then we'll introduce each other and take it forward. कुमोद जी आप ही के द्वारा भेजा गया वीडियो है. So this friends, this basically CIMP, as my message would have reached to all of you through Manish ji and Pathak sir, is a premier management body. Director sir is here, so they'll introduce it later. But let us have a look at this CIMP and the activity it does, and then we'll take it forward from here. I think voice is not coming, no? Institute of Management. You're getting voice? Established Audio? in the year 2008 as a culmination of the vision of our Honorable Chief Minister, Shri Nitish Kumar ji, on the lines of IIM Ahmedabad, and with a set of brilliant and ignited faculty members from all over the country. The institution is currently offering PGDM program, Postgraduate Diploma in Management, approved by All India Council for Technical Education, which is equivalent to MBA program by Association of Indian Universities. It's also offering FPM program, Fellow Program in Management, which is also offered as Executive Fellow Program in Management for the working executives. Last year, we launched PGDM Innovation, Entrepreneurship and Venture Development. This 2-year program is approved again by All India Council for Technical Education and has been sponsored by Department of Industries, Government of Bihar, wherein 80% and 90% scholarship is being offered to general and OBC candidates and SC/ST Divyang candidates and female candidates respectively. Hello everyone, myself Kumod Kumar, CEO of CIMP Business Incubation and Innovation Foundation. Our institute offers a vibrant environment that encourages holistic growth. CIMP BIF was established in the year 2017 with the active support of Department of Industry, Government of Bihar. The Incubation Center is impaneled under the Startup Bihar and Startup India. The foundation provides a variety of facilities to the startup in Bihar, such as mentorship, e-sale training, startup training, and North Bihar mentoring. We also have specialized certificate courses, co-working place, and outreach programs for startups. Hi, my name is Praveen Kumar, and I'm associated with CIMP Business Incubation and Innovation Foundation as an advisor. We as an institute, we always felt that Bihar is a land of opportunity. And despite being a land of opportunity, there was no platform available for startups. CIMP has founded BIF. We are committed to take this journey to the level wherein all startups from Bihar and even from outside get attracted to come to Bihar and explore the opportunity and potential of Bihar. Hi, I'm Divyanshu Verma, Director and Advisor to CIMP BIF. BIF is helping them, these youths, to realize these ideas, to help them get the nuances of business and entrepreneurship, and taking from idea to execution to final product that is like serving the society and the business. Namaste.
मैं डॉक्टर नीरज झा, फाउंडर एंड सीईओ एट हनुमान। CIMP BIF का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब एक स्टार्टअप को बहुत ज्यादा जरूरत होती है मदद की, तो उस समय CIMP BIF ने हमें कनेक्शंस दिए। सरकार से जो मदद मिल सकती है उस मदद में हेल्प किया, हमारे बिजनेस प्लान को डेवलप करने में हमारी हेल्प की, और स्टेप बाय स्टेप हमें इंक्यूबेशन के दौरान बहुत सारी सहायता मिली। Right from getting a space to getting mentors to getting advisors and connections into government and private healthcare space, everything I got under one roof, and I'm very thankful for all the support that I've got from CIMP BIF. मैं पिछले 6 साल से CIMP से जुड़ा हुआ हूँ। CIMP का एक यूनिट है BIF, जो स्टार्टअप को मेंटर भी करती है, उसके प्रोजेक्ट को इनहेंस करती है, उनके सपने कैसे साकार होंगे उनके लिए वो पॉलिश लगा के उनके बिजनेस मॉडल को खूब बेहतर तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूट करने का तरीका बताते हैं। CIMP and Radiant has a long association. Not only is CIMP the official mentor for the ATL lab in Radiant, but the wonderful support that we get from CIMP is absolutely amazing. My students have been exposed to the incubation programs that they run. These students have gone, 11th and 12th standard students especially, have gone for around 15 days internship program at the P-Hub. नमस्ते, मेरा नाम वंदना दास है। मेरी कंपनी, मेरे स्टार्टअप का नाम पेपर पेपर है, जो कि इंक्यूबेटिव है CIMP BIF की। CIMP BIF helped me a lot for this. When this idea came to my mind, I became the incubator to CIMP BIF, and they helped me a lot. They gave me chance to open my first store here in the campus itself, and they also helped me to get the fund from industry department, Bihar government. We welcome all the startup founders from Bihar to take advantage of our facilities by getting we together can make the startup ecosystem of Bihar stronger. So, friends, this was a short video about what CIMP is doing and what CIMP aspires to do to make a very thriving ecosystem in Bihar. We are honored to have Professor Dr. Rana Singh, who is the director of CIMP BIF. I will also play a short video about Startup Bihar later, because now people are here so to start interacting, because my colleagues at CIMP also have some sessions to be conducted. And we have Sri Kumod Kumarji. He is the CEO of CIMP BIF and is also CEO of CIMP per se. And I had being in Pune, I had chance to interact with both of them quite often and quite frequently. In fact, I was their host in month of December, and so in month of May and June. I've interacted with their entire ecosystem, the incubators, the startups. I've seen the infrastructure, and seeing is believing. And I can assure you one thing, that the infrastructure which they have made, which they have provided, or which they have vision for, is competitive to any infrastructure in the world. We all must have traveled the world. We must have seen different infrastructures, but that kind of environment and ecosystem that they're trying to create is certainly very, very aspiring and inspiring both. Now, in this pursuit, we are trying to, invite the entrepreneurs and the innovators who are basically from Bihar or based in Bihar to come back and support the ecosystem here, because we all know there is no dearth of talent in our place. But yes, there is dearth of, a kind of an exposure to new technologies, to new learnings, to new pedagogies.
And that is where you know, all of us who have exiled or who are trying to exile or aspiring to exile have moved forward from Bihar and then are trying to do good. We should try to contribute back. Now, in this pursuit, we had a program in month of March in Pune, where almost 40-50 Bihari founders met in Pune. Rana sir had come, Kumar sir had also come, and we have tried to create an ecosystem where many of them are getting incubated at CIMP, or you know, they are having a co-working space as BHub. You saw the BHub. Kumar will explain you more about BHub when he speaks. So things are happening. And when I was this time in Patna for my vacations, I did a chat with him, and I believe Divyanshu ji, I do not know, I think he's not here. We did also think that, you know, Bangalore being one of the most important startup hub of this country, we should not miss out on Bangalore. Obviously, Pune, we are trying to compete, but we should take the Bangalore thing also forward. And this today meeting is to just know about each other. Kumar will explain what he offers in terms of ecosystem. But we plan to have a large physical meet next month where they will travel, they will interact with the founders, and they will try to extend a warm welcome. As Kumoji always says, he always extends a red carpet to anybody who wants to come and support us. So I'll not take much of time. I thank Manish ji to support this initiative. I also thank Pathak sir. Kumoji Pathak, Mr. Pathak has a very interesting restaurant in Bangalore, which I came to know, called Champaran Hut. So it's very, and I think that, and Manish ji tells me that the cuisine is also very exquisite. So next time we go, we need to have a supper there also as well. So I leave it to you, Rana sir, Kumoji, you can take it forward. I'll be, and Manish ji and Pathak sir, they are based in Bangalore. They know people there. So I leave it to all of you. You can introduce what you want to do, what you have to, you know, what you can offer to the startup founders are away, and what kind of, you know, support you people in Bangalore can give it to the ecosystem. So this interaction is all about that. It is basically a preliminary meeting for a larger meet in Bangalore and a larger collaboration and a larger, you know, synergy that we are looking at. Over to Rana sir and Kumoji. Thank you very, very much, sir. Thank you very much for hosting this meeting, and thanks to all the members from Bangalore who are here today. And let me just give you a brief. We are Chandragupta Institute of Management, and I'm currently representing as Director of Chandragupta Institute of Management, Patna. We have a dedicated foundation, CIMP BIIF, that is called Chandragupta Institute of Management, Patna's Business Innovation and Incubation Foundation, which is led by the visionary leadership of Kumar Kumarji, who happens to be the Chief Executive Officer of CIMP BIIF. And CIMP BIIF is committed to the cause of setting and breaking benchmarks of excellence in the domain of business innovation, incubation, IPR, commercialization, as well as nurturing the startups and the entrepreneurial ecosystem on a turnkey basis. We are thankful to Ravi Bharadwaj sir, managing partner of Startup Legal. We were there at Pune, and we signed up an MOU, and we are taking up the ecosystem of Patna and Pune together to newer heights. And we at CIMP and CIMP BIIF have this unwavering commitment of strengthening our partnerships with more and more stakeholders from across the country and beyond the boundaries of the country, to make sure that Bihar, which was rated at 8th rank in the latest Startup India rankings, we are committed to the cause of taking it to better rankings in the times to come. And I'm glad to share that CIMP BIIF was ranked #1 amongst all the incubators of the state of Bihar by Startup Bihar, leaving behind other leading institutions including IIT Patna and IIM Bodh, apart from various other leading incubators of the state. We have CIMP BIIF has been mentoring large number of startups, and it has been managing BHub, which is co-working space and co-learning space, which has been established by Government of Bihar, Department of Industries, and it has space for around 200 startups to be given co-working space with
with an area of around 17,000 square feet plus. And we have been doing series of programs, including boot camps, workshops, seminars, conferences, and we are helping our startups to get external linkages, market linkages, export linkages, pre-incubation facilities, ideation facilities, prototype validation facilities, then getting IPRs filed with the patent office, legal consulting. Thereafter, once the prototype market research, then we also help them in getting funding from the Startup Bihar funding process. Apart from that, we also help them to get funding from the various national and international funding bodies. Apart from this, we also help them in understanding the entire startup ecosystem and how they can leverage the same. So it has been a great journey working with Startup Legal under the dynamic leadership of Ravi Bharadwaj sir, who's the managing partner. And we are committed to the cause of furthering mutual interests and join hands with new set of stakeholders to take the startup journey to newer heights. We have signed up MOU with multiple leading partners across the country, including but not limited to BHUB, UN bodies, ASCII, and many others, including a lot of universities and national level institutions within the state and outside the state. So that has just been a brief summary. And we are running PGDM IEV program, that is Innovation, Entrepreneurship and Venture Development, in which we are giving 90% scholarship for the female candidates and 80% scholarship for the male candidates, and 90% for SC/ST Divyang candidates and 80% for the OBC candidates. So we are one of the 25 business schools which have been given approval for this. So to summarize, we are providing a turnkey solution, enabling ecosystem and a conducive ecosystem for the startups in the state of Bihar. We are partner institute with MSME. We are the host institute for MSME, and we are also a technical institute with KVIC. So we are strengthening the entrepreneurial ecosystem. We have trained more than 5,000 entrepreneurs from Bihar who have been funded 10 lakhs each under the Udyami Yojana. So we have been trying to transform the entire landscape of entrepreneurship, startups, as well as the incubation and innovation ecosystem of the state of Bihar. And that's just a brief. And let me tell you and thank Professor Kumod Kumarji, who is a practice professor in the domain of entrepreneurship and innovation and incubation, who has been helping the startups of Bihar, and has also been mentoring other startups from across the country, as he has more than 2 decades of experience in the media domain and has led India Today, Bihar, Jharkhand, and Nepal, and has recently launched a marvelous magazine, Startup and I, which is going to cover the success stories of startups from Bihar and rest of the country as well, to give a catalytic boost to the startups. So that's just a brief. Thank you for patient listening. Over to you, sir. No, it's over to your colleague sitting next to you. Yes, Kumarji, over to you. We all are here eager to listen you. Friends, I must tell you, we have gone through an age in Bihar where, we all were dejected, defeated. I don't want to make political comments, but some spark that we see now in the startup ecosystem, obviously other developments have happened. There is no doubt on that. I think Mr. Kumod Kumar is a crusader of a cause. Once you start interacting, you will realize it. I also realized when I started interacting with him, his energy is very infectious and very envious both. It's difficult to match his energy. Anyway, Yes. I don't want to speak much. You can, he'll speak and he'll speak for himself. And inspiring also at times. Pardon? Inspiring also at times. That is what I said, infectious. मैं लॉयर हूं ना, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा दूसरी अंग्रेजी यूज करता हूं, तो मैं इसलिए मैंने इन्फेक्शियस कहा। मैंने वो इन्फेक्शन कर देता, और इन्फेक्शन ऐसी चीज है जो छोड़ता नहीं है। इंस्पिरेशन तो शायद कभी मिले या नहीं मिले, इन्फेक्शन जरूर पकड़ लेता है। Exactly. जकड़ भी लेता है, पकड़ के जकड़ लेता है। Yes, पकड़ के जकड़ लेता है। Vijesh is also complimenting him. Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, go ahead please. बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रवि भारद्वाज सर का और हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर राणा सिंह जी का, इन दोनों का ये फेथ है हमारे ऊपर, जो इतना ये बोल रहे हैं। मैं इस फील्ड का आदमी नहीं रहा हूं, मैं मीडिया इंडस्ट्री से आया हूं, तो अगर इसमें मेरा इंटरेस्ट जगा भी है तो उसमें हमारे डायरेक्टर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और हमारे फ्रेंड
फिलोसोफर और गाइड रवि जी जैसे लोग जो बाहर रह करके भी इस इकोसिस्टम को काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रवि जी को और बेंगलोर से में जितने भी जुड़े हुए बिहारी फाउंडर हैं, नॉन रेसिडेंट बिहारी उन सबको मैं आज की मीटिंग में स्वागत करता हूं और मैं बहुत आभारी हूं कि हम लोग इस कॉज के लिए हम लोग जुड़े। इससे पहले इसी तरह का एक पुणे में हुआ था, रवि जी के नेतृत्व में, और इनके रवि जी की परिकल्पना थी और वो बहुत ही वो जो है वो बहुत ही सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। और आज वहां के पुणे के बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये सोचा कि और जगह पे ये करना चाहिए, तो आज ये फॉर्मल मीटिंग है। तो हम 5 मिनट जो है CIMP के बारे में, 2 मिनट CIMP के बारे में बताएंगे, फिर BIF के बारे में सर ने बताया है, स्टार्टअप बिहार के पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर हम लोग कैसे मतलब जुड़ सकते हैं या क्या हम लोग आगे कर सकते हैं, साथ में कैसे हम लोग एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि CIMP की परिकल्पना 2008 में हुआ था और ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी जब पहली बार यहाँ वो मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि यहाँ हायर एजुकेशन के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये यहाँ लाने की कोशिश किए थे। और उसी क्रम में यहाँ पे IIT आया, एम्स आया, निफ्ट आया, नेशनल लॉ आया और IIMs को वो उस समय लाना चाह रहे थे, जो वो उस समय पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण नहीं ला पाए। फिर उन्होंने IIM अहमदाबाद के तर्ज पे CIMP की कल्पना की और CIMP को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने एक 5 प्रोफेसरों की टीम बनाई जो IIM अहमदाबाद के थे और देश के अलग अलग जगहों से, और CIMP की स्थापना हुई। इसके चेयरमैन भी माननीय मुख्यमंत्री खुद हैं और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूटिव बॉडी कमिटी बनाई। और हमारे जो पहले फाउंडर डायरेक्टर थे वो डॉक्टर B मुकुंद दास जी, वो इरमा के फर्स्ट फैकल्टी थे IIM अहमदाबाद और कई जगह पे काम करके आए थे और फिर उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी। उसके बाद से हम लोगों का ये जर्नी शुरू हुआ। हम लोग अभी CIMP में PGDM कोर्स होता है जो जिसमें हमें 120 सीट अभी तक था, इस साल से 180 सीट है, फुल्ली रेजिडेंशियल है। उसके अलावे पिछले साल सर ने बताया PGDM IV इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर हमारा एक FPM है, डॉक्टरल कोर्स, एग्जीक्यूटिव FPM है और बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हमारा EXPM वो चलता रहा है। इन सब के अलावे हमारा जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर है वो काफी, हम लोग ट्रेनिंग के फील्ड में काफी यहाँ के सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में से हैं और जितने भी बड़े PSUs हैं वो सब, उनके जो अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग यही होती है। बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रेनिंग यही होती है। और CIMP अपने 15 साल 16 साल के जर्नी में अपना NIRF रैंकिंग के हिसाब से हम लोग देश के टॉप 125 इंस्टीट्यूशंस में हैं और हम लोग का हर पैरामीटर्स पे, चाहे वो रिसर्च है, चाहे वो कंसल्टिंग है या प्लेसमेंट है या एकेडमिक्स है, सब में हम लोग काफी बढ़िया रैंक्ड हैं। जो स्टार्टअप की इंक्यूबेशन सेंटर की जर्नी जो है वो शुरू हुई 2017 से, जब बिहार सरकार ने पहला स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया 5 साल के लिए, 2017 से 2022। उस क्रम में बिहार सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने यहाँ के कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया
जिसमें CIMP, IIT इन सब में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हुई। और 2017 से 22 जो पहला मतलब स्टार्टअप पॉलिसी बनी 5 साल के लिए, तो 2017 में भी सबसे लीडिंग रोल CIMP का ही रहा। और अभी बिहार से जितने भी जो मेजरली जो अच्छे स्टार्टअप हैं वो CIMP के द्वारा ही मेंटर्ड है। फिर 2022 से अभी अगला 5 साल के लिए जो इसकी नई पॉलिसी बनी, तो हम लोग अपने पिछले अनुभव के आधार पे हम लोगों ने पॉलिसी लेवल पे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब इंक्लूड करवाया, जिसके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि अभी जो स्टार्टअप बिहार की जो पॉलिसी है वो देश के माने किसी भी जो गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट, उनमें से बेस्ट पॉलिसी आप कह सकते हैं बिहार सरकार के पॉलिसी को। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बिहार सरकार ने 500 करोड़ का एक कॉर्पस बनाया है जो सिर्फ स्टार्टअप के डेवलपमेंट के लिए उसको खर्च करना है, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के नाम से, जिसको चेयर करते हैं यहाँ के डेवलपमेंट कमिश्नर। और हम CIMP डायरेक्टर और IIT डायरेक्टर उसमें एज ए मेंबर होते हैं। हम लोगों का उसमें बहुत बड़ा से होता है। तो हम लोगों ने जो 2022 से 27 के लिए जो पॉलिसी बनी, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कराया। और एक ब्रीफ मैं बता देता हूं कि अभी बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी में मैं मेन पॉइंट सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दूंगा। अभी क्या है कि हमारे यहाँ आइडिया लेवल पे अगर किसी के दिमाग में कोई भी आइडिया है, तो आइडिया लेवल पर भी बिहार सरकार 10 लाख का प्री सीड फंड देती है। उसके लिए प्रक्रिया ये है कि किसी के मन में अगर कोई आइडिया है, स्टार्टअप बिहार के साइट पे जाके उसको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद जो स्टार्टअप बिहार की टीम है वो आइडिया के बेसिस पे, जो आइडिया उनको लगता है कि वो वायबल है, उसके आधार पे वो उन लोगों को एक रिटन एग्जाम के लिए बुलाते हैं, जो बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम है। और वो उस एग्जाम के बाद उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि एक्सपर्ट के रूप में CIMP और IIT के लोग रहते हैं और चेयर्ड बाय जो विभाग के जो IAS कोई जो डायरेक्टर लेवल के लोग रहते हैं वो होते हैं। और बहुत ही आसानी से, जिनका भी थोड़ा भी बेहतर होता है, जिसमें थोड़ी भी गुंजाइश होती है, उनको फंड दिया जाता है आइडिया लेवल पर। ये सारी प्रक्रिया जो है, जिस समय आप फॉर्म फिल करते हैं से अप्रूवल तक में 1.5 महीने का समय लगता है। तो बहुत ही फास्ट सरकार ने किया है। अब 10 लाख का प्री सीड फंड हुआ। उस प्री सीड फंड के बाद अब उसके बाद अगर वो स्टार्टअप 20 लाख के टर्नओवर तक को अब पहुंचता है, तो वो फिर से 15 लाख का पोस्ट सीड फंड के लिए वो एलिजिबल है, वो अप्लाई सकता है। और बहुत ही आसानी से एक प्रेजेंटेशन होता है, उसके आधार पे आपको बताना होता है कि आपने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किया और आप क्या करने जा रहे हैं। फिर 15 लाख का पोस्ट सीड फंड दिया जाता है, जो मात्र 5% के इंटरेस्ट रेट पे है। अब उसके बाद अगर हमारे स्टार्टअप अगर कहीं से फंड रेज करते हैं, जो सेबी अप्रूव्ड वेंचर फंड अगर वो देते हैं, तो अप टू 50 लाख अगर आपको मिलता है तो करती है, और वो भी 5% के इंटरेस्ट रेट पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इसके अलावे और भी बहुत सारा चीज बिहार सरकार करती है, जिसमें कि वो वर्किंग स्पेस जो बीहब की अभी चर्चा सर ने की, तो बीहब जो बिहार गवर्नमेंट से जिनको भी सीड फंड मिला हुआ है, वो बीहब में ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, और वो हार्ट ऑफ द सिटी में
1500 रुपए पर मंथ पे उनको एक सीट मिलता है, जहां पर कि फ्री एयर कंडीशन, फ्री वाईफाई, कॉमन सारी सुविधाएं रहती है, प्रिंटर और अदर चीजें। और वो बहुत, और वहां पर स्टार्टअप को मेंटरशिप के लिए ऑलवेज जो है इवेंट्स होते रहते हैं, मेंटरशिप इवेंट होते हैं। रवि सर का भी वहां हो चुका है। और वहां पर हर तरह से, अगर मान लिया किसी को कोई स्पेसिफिक मेंटरशिप की जरूरत है, तो वो भी हम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड या एकेडमिक जैसा भी मेंटरशिप की उनको आवश्यकता होती है, हम लोग कराते हैं। तो ये सारा चीज अभी स्टार्टअप बिहार कर रहा है। इन सब के अलावे मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट की मंशा स्टार्टअप को हेल्प करने का है। और साथ ही धीरे धीरे, चूंकि हम लोगों का इकोसिस्टम थोड़ा डिले डेवलप हुआ है, बट वो बहुत ही सही तरीके से जा रहा है। सरकार भी सही तरीके से प्रयास कर रही है, और सीआईएमपी और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन है वो भी लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो ये ब्रीफली जो है मैं आपको जो स्टार्टअप बिहार के बारे में बताया। अब सीआईएमपी बीआईएफ जो है, इसमें बेसिक चीज तो सर ने बता दिया है, लेकिन कुछ चीजें मैं और बताना चाहता हूं। जैसे हम लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, तो एक तो हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है मेंटोर्स, जो एकेडमिक मेंटोर्स हैं, वो हमारे जो है हमारा इन हाउस होता है। उसके अलावे जो सीआईएमपी बीआईएफ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो ये है कि हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो प्रोफेशनल मेंटर्स का एक पूरा पूल तैयार किया है, जो कि काफी डेडिकेटेड हैं हमारे इस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए। उसमें से आप रवि जी जैसे लोगों को देख सकते हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि गूगल इंडिया के जो हेड हैं स्टार्टअप के, या आपके वहां बेंगलोर में एम फाइन के जो को फाउंडर हैं, या रिजर्व पे के जो एमडी और को फाउंडर हैं, ये सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और ये हमारे यहाँ आकर के वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। जब भी हम बुलाते हैं, जब भी हम बोलते हैं, तो वो यहाँ आते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे स्टार्टअप को भी जहां मदद की जरूरत होती है वहां मदद करते हैं। जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमारे एमओयूज पूरे नेशनल और इंटरनेशनल हैं। हम पूरे वर्ल्ड के इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग अब ये चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने पुणे में वहाँ के स्टार्टअप फाउंडर्स को अपने साथ जोड़ा, हम आप लोग को भी ये इनवाइट करते हैं कि आप बिहार के इकोसिस्टम के साथ जुड़िए। बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम बन रहा है, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और आप इसमें ये भी देखिए, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखिए, हम 14 करोड़ के स्टेट हैं। यहाँ पर बहुत सारा चीज आप जो वहां बिजनेस कर रहे हैं, वो यहाँ भी एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। यहाँ किसी भी तरह का अगर कोई लोकल सपोर्ट की जरूरत होती है, सीआईएमपी बीआईएफ आपको हर तरीके की मदद करने के लिए तैयार है। हमारा पूरा ऑफिस, हमारे यहाँ से हम आप लोगों के लिए एक आदमी नॉमिनेट कर देंगे। रवि सर इसमें हैं, और ये बहुत ही डेडिकेटेड अपने स्टेट के लिए हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। तो आप सब लोग, मैं आप लोगों को भी इनवाइट करता हूं कि जो भी यहाँ आइए, तो एक बार यहाँ विजिट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। कोई यहाँ के लिए सजेशन है, आप वो सजेशन दीजिए। आप ये सोच के चलिए कि ये इंस्टीट्यूशन आपका भी है, आपको भी ग्रो करने में मदद करना है। और हम सीआईएमपी का पूरा मैनेजमेंट और सीआईएमपी बीआईएफ का हम लोग पूरा ओपन हैं
अपने आप को अपडेट करने के लिए और इस इकोसिस्टम में कोई भी सजेशन आपका है, हम लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए हैं। अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू रवि सर। कुमोद जी, मनीष जी का एक प्रश्न है कि ये जो आपने 1500 रुपए की जो बात की, ये 1500 रुपए में सिटिंग स्पेस जो है वो CIMP में इंक्यूबेट होने के बाद मिलता है या कि कोई और अलग इसका योग्यता का प्रक्रिया है? मैं बता रहा हूं, उसमें हम जो बीहब है, बीहब की योग्यता यही है कि जो बिहार सरकार से सीड फंड लिए हुए हैं, बिहार सरकार से जो पैसा लिए हुए हैं, उसको वो वहां अप्लाई कर सकता है। और मनीष जी, clear to you? Manish ji, Yes. We'll speak on that, but before that, let's start that video. Then after that, we'll have question and answer in that. We'll ask further. okay, so you want to see the Startup Bihar video? हाँ sir. वो continue कर देंगे. That will be helpful for everyone to Okay, understand. okay. Thank you so much, sir. Thank you so much, Kumud sir. Thank you. I think there is no voice नहीं आ रहा. I think. Ravi sir. प्रेजेंटेशन म्यूट होगा सर। This was a very short brief of what Kumod ji actually explained and Dr. Ekta Saab actually spoke. Now I leave it to our Bangalore friends. ये आप लोगों का फोरम है जैसा कुमोद जी ने कहा, और हम सब आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप जहां से हैं वहां जाके कंट्रीब्यूट कीजिए। आप लोग अपना परिचय दे सकते हैं। मनीष जी, आई थिंक यू कैन नाउ टेक द लीड फॉरवर्ड सिंस यू आर देयर, और पाठक साहब इज देयर, ही कैन टेक द लीड फॉरवर्ड। आप हमें सजेशन दीजिए, आप हमें बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। आई लीव इट टू फ्रेंड्स फ्रॉम बैंगलोर। नाउ आवर जॉब इज ओवर। मेरा और कुमोद जी का, राणा जी का काम खत्म हो गया। अब आप लोग इस पे, यू कैन, द फोरम कैन बी लेफ्ट टू यू। एनीवन कैन स्टार्ट। हेलो सर, नमस्कार। आवाज आ रहा है? आ रहा है। हाँ, सो मैं सबसे पहले CIMP को मतलब थैंक यू करना चाहूँगा कि मैं जब बिहार में वापस आया, डैड रिटायर हुए, बिहार में सेटल हुआ, तो मैं ढूंढ रहा था इकोसिस्टम कहाँ है, कैसा है। और CIMP में एक फर्स्ट इवेंट जो मेरा था वो हेड स्टार्ट का इन्होंने एक इवेंट कराया था, और मेरा लाइफ में पहली बार कॉन्फिडेंस आया कि यार ऐसा बिहार में कैसे हो सकता है। मतलब कैसे, मतलब वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का इनका एक ऑडिटोरियम है भाई, बहुत प्यारा ऑडिटोरियम, मतलब मजा आ गया देख के। फोटोज बहुत अच्छी आती है, मैं अभी भी फोटो रखता हूँ। और मैं उसका कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ। उस दिन मेरे को लाइफ में बहुत अच्छा लगा। आई मेट 2 स्टार्टअप, एक मिल्क विला करके था, और मिल्क विला के साथ वी कंटिन्यूड अवर जर्नी। हम लोग एग्रीकल्चर में हैं, और नाउ वी हैव अ बैंगलोर ऑफिस ऑफ मिल्क विला। मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ, एंड दिस ऑफिस इज फॉर एवरीवन। कुमोद सर जिसका नाम ले सबके लिए। एक सेकंड, ये बैकग्राउंड अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मनु, कुमोद सर लाइन पे। सो ही इज मनु, मिल्क विला के फाउंडर। हम लोग वहीं पे मिले थे CIMP के स्टेज पे, और आज रिजल्ट ये है
कि वी आर सेटिंग अप अ 6,000 स्क्वायर फीट फैक्ट्री, गांव से कच्चा दूध उठा के शहरों में देना। और मेरा अपना स्टार्टअप है भूमि ऑर्गेनिक। मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। वी आर मेकिंग बायो सीएनजी। हम लोग का टारगेट एकदम क्लियर है कि गांव में किसान 10,000 रुपए महीना कमाएगा तो गांव छोड़ के क्यों जाएगा, ठीक है। और पूरे भारतवर्ष में इसको करना है। मेरे पास स्क्रीन शेयर ट्राई करता हूँ। तो मेरा जो एक कुछ क्वेश्चन था वो भी हम पूछेंगे। स्क्रीन दिखता है? स्क्रीन दिख रहा है लेकिन कुछ और दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है अभी? हाँ, दिख रहा है। ये व्हाट्सएप So, चैट ये दिख रहा है हमने आपका। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ हाँ। So, भभुआ के थोड़ा सा आगे वी आर सेटिंग अप 6,000 मतलब दिस इज 4,000 kg पर डे बायो सीएनजी प्लांट। वहीं से कॉन्फिडेंस आया था। और बिहार का बायो एनर्जी पॉलिसी है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और मेरा पर्सनल काम है खेती का। जो शहरों में हरा चारा आपका 6 रुपए 7 रुपए का बनता है, मैं 2 रुपए 75 पैसे में ग्रीन फॉडर उगा के देता हूँ। और 10 एकड़ से, फ्रॉम 10 एकड़ ऑफ लैंड वी आर मेकिंग अराउंड 60 lakhs पर ईयर। जो हमारा ये था ना कि प्रति कट्ठा किसान 500 से 1,000 रुपए कमाता है, तो 1 बीघा से किसान 15,000 रुपए कमाता है। तो सर से हमारा काफी डिस्कशन हुआ था इस मुद्दे के ऊपर। और सर फूड प्रोसेसिंग से रशिया से लोगों को लेके आए थे। अरे भैया, हम सबको चंपारण मीट का मसाला खिला रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का। और एक बार सर ने वो बोला था कि CIMP पे वी विल सेट अप मेकर स्पेस। आई थिंक दैट इज अ नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग, कि दैट विल गिव अ कॉन्फिडेंस कि वी कैन डू थिंग्स फ्रॉम आवर हैंड। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसा भी है, जो भी है, अपना है, बेस्ट है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और सबको बैंगलोर में कुछ भी सपोर्ट चाहिए, वी आर हियर। रवि सर से मैं थोड़े दिन में मिलूंगा। तो पूरे शहर का नक्शा निकाल रखे हैं, सोसाइटीज कहाँ पे है, वेयर हाउस कहाँ पे है, फ्लाइट कैसे आती है। लीची, इस बार लीची लाके सबको, लीची वाला फोटो दिखाते हैं मुझे, सबको लाके लीची खिलाए हैं कि बिहारी आदमी ओल का सब्जी मिस करता है, लीची मिस करता है, जर्दालू आम मिस करता है। अरे 5-5 किलो खाएगा ना, 5-5 किलो में ही हम लोग 10 करोड़ का टर्नओवर पर ईयर कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा अभी एक रिक्वायरमेंट है कि मेरा फर्स्ट ट्रांच निकला था 4 लाख रुपीस का, 2 लाख खर्चा हुआ है, 2 लाख बचा हुआ है। अभी मुझे 10 एकड़ पे फार्म सेटअप करना है। तो मुझे सेकंड ट्रांच का पेपर वर्क में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आई एम एग्जीक्यूशन गाय, पेपर वर्क मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है। आई जस्ट गेट थिंग डन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग खुद से बनाते हैं, ड्रोन्स हम लोग खुद से बना देते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात, CIMP ने अपना कैंपस हम लोग को दिया कि प्रैक्टिस योर ड्रोन, ठीक है, आइए फ्लाई करिए, ट्रेनिंग करिए। सो आई एम सो सरप्राइज, कोई कैसे कर सकता है बिहार में। सो आई एम सो हैप्पी एंड इट्स अ बेस्ट इकोसिस्टम। जैसा भी है, जो भी है, अपना है। आई एम डन स्पीकिंग, थैंक यू फॉर इट। थैंक यू ब्रिजेश जी। आई थिंक आपकी स्टोरी बहुत, अभी मीटिंग के पहले मनीष जी और पाठक जी से बात हो रही थी कि एक जो परसेप्शन वार जो हम लोग जो हरदम लड़ते हैं अपने तरफ से, आई थिंक योर स्पीच इज क्वाइट encouraging to fight that perception war. Anybody next can take it up to Brijesh ji. I just request you all to be brief because Kumod ji और हाँ जी का थोड़ा टाइम कम है। Anybody else? पाठक सर, I think चंपारण की बात की ब्रिजेश जी ने, आपका चंपारण है, प्लीज गो अहेड, वी आर लिसनिंग। Thank you for giving. I was just waiting for my turn. I mean, I thought like No, it's your. There's nobody's turn. Everybody should lead. Go ahead, sir. I was trying to speak, and then in between, I even got to hear the story of Brijesh ji. So I thought, okay, while the name is common, but his story is really commendable. So I thought, let us appreciate that. So I mean, yeah. So let me just introduce myself. My name is Brijesh Pathak, and I have been in Bangalore since last 9 years by now. And did my chartered accountancy course from Kolkata in 2015 and then came to Bangalore. I have led here the venture capital fund of 500 crores. And I understand the pattern of, working with venture capital. And then while we wind up that fund in 2019, we also then, I thought, like, let me turn into the other side of the table. And then I joined like some of the startups wherein we had funded as a CFO.
and raised them from seed round to Series B round. We raised up to 150 crores in 2 of the startups. And then, like, after working for 2-3 years, I thought, let me do something of my own. So I have my 2-3 ventures right now. So yeah, that's the short journey about it. So I am like deeply involved into startup space ecosystem here in Bangalore, and more into funding part of it. But I have seen the process of building the startup, from building the product, building the right set of pitch, building the business plan, understand the process flows, and then make it or correct it to the suitably possible way. So I mean, yeah. So I mean, I certainly had few questions to be asked, but that is more about the processes part. I come from Bhagalpur, Bihar, so my thinking about Bihar was like something कि यार यहाँ पे कुछ move नहीं होता है. So now that has changed. That has changed post this call and post the conversation with Ravi sir, obviously. So I want to understand more about the process part कि सर वो जैसे कि अपना अभी जो incubation का process है वहाँ पे, तो how smooth is it? Like, is it something which happens really quickly, or like कितना सरकारी it ऑफिस में takes घूमना पड़ेगा? does it take a lot of time, lot of paperwork? एक तो वो था. Second, that I would also like to think it in a much broader way as to how do we make this ecosystem more comfortable working with people, as government has been supportive, but गवर्नमेंट के अलावा जैसे बेंगलुरु में इकोसिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं काफी सपोर्ट करते हैं. तो हाउ डू वी बिल्ड दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पटना और बिहार, wherever we are choosing to, so that की कंपनीज वहां पे ऑटोमेटिकली आए, मतलब किसी को बुलाना ना पड़े. So something like that. What is that thinking line or vision that we have on that part is what we would like to really discuss and take it up further. सबसे पहले तो take it up. जी सबसे पहले तो ब्रजेश पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग दोनों एक ही जिले के हैं. मैं भी और बहुत बढ़िया से अंगिका बोलता हूं. तो दूसरा कि आपके क्वेश्चन का आंसर तो हम दे ही देते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी राजीव हैं बैठे हुए. इस मीटिंग के बाद राजीव, आपको जो है हमारे यहाँ, आप हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम से पूरा मतलब आप इसका हमारे लिए, हमारे मेंटरशिप बोर्ड के लिए हम आपको इनविटेशन भेजेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे मेंटर ग्रुप में आप रहिए. अब जैसा आपका पहला क्वेश्चन था कि इंक्यूबेशन के लिए यहाँ पे कितना मतलब ये है, बहुत ही आसान है सर. हम लोग यहाँ पे मेजर प्लेयर जो है 2-3 लोग हैं इंक्यूबेशन के लिए. एक तो CIMP है, दूसरा IIT है, IIT में, और यहाँ पर बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन वो भी अपना एक किए हुए है वेंचर पार्क करके. तो ये 3-4 हैं जो कि जो काफी मतलब बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, बहुत ही हेल्पफुल हैं. जैसा आपने बताया कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका था, क्या था? मैं सोच रहा था सर कि मतलब जैसे कि अभी गवर्नमेंट काफी स्कीम्स स्पॉन्सर्ड कर रही है फॉर द इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स, बट गवर्नमेंट के अलावा जो और भी फोर्सेस होते हैं, जैसे कि कुछ VCs का वहां पे होना, कुछ टेक सपोर्ट का वहां पे होना, कुछ एलिजिबल एम्प्लॉइज का वहां पे होना जो कि रिक्वायर्ड है फॉर बिल्डिंग द प्रोडक्ट, उस इकोसिस्टम को कैसे इन एंड अराउंड बिल्ड किया जाए, मैं थोड़ा उसके बारे में सोचना चाह रहा था. मतलब तो एक चीज तो बहुत फ्रैंकली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि चूंकि हमारा काफी डिले मतलब हमारा इकोसिस्टम जो है यहाँ डेवलप था नहीं. तो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं बेंगलोर में, वहाँ के अपेक्षा ये सारा चीज अभी काफी मतलब कि इनिशियल स्टेज में है. लेकिन ये है कि एवरी डे ये जो है मतलब काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है. उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको जैसा मैंने बताया कि IIT है, IIMs है, ये सारे लोग तो यहाँ पे इंक्यूबेशन में हैं. और इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए अब अभी जैसे पटना टाई
जो है वो ओपन हो रहा है। इन सारे चीज से अभी जो है उससे काफी बेहतर हो रहा है, एवरी डे जो है वो हो रहा है। लेकिन ये है कि अभी ये जो है उतना मैच्योर नहीं है जितना कि आप लोग जहां बैठे हुए हैं, जहां मतलब वो धीरे धीरे हमारे यहाँ ग्रो हो रहा हाँ, है। तो वो तो सर धीरे धीरे होगा, बट मुझे ना उसका थोड़ा पाथ समझना था कि मतलब एज ए टीम हाउ डू वी बिल्ड दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन समथिंग लाइक दैट। नहीं उसका पाथ कैसा होगा? नहीं, हम बता रहे हैं कि वो सारा पाठक जी का कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा अगर स्टार्टअप में जुड़ता है तो वो बहुत बड़ा अपना लाइफ का स्टेक लेके जुड़ता है, ठीक है। सो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वुड कम देम कि हाँ, अगर हम ये चीज बिहार में करते हैं तो डेफिनेटली whatever relevant assistance required, government of Bihar or people from the different group can help them to keep them growing. Correct me if I'm wrong, Pathak. Hello, my name is Rajiv. I'm the community manager here. So there is one thing that I would like to explain here. What do we do as an incubator? हम लोग 4 तरह के सर्विसेज स्टार्टअप को देते हैं. So basically we work as a facilitator. और हम जो सबसे पहला सपोर्ट देते हैं स्टार्टअप को वो है मेंटोरशिप. तो मेंटोरशिप क्या है कि बी हब और CIMP BIF में इंक्यूबेटिंग अराउंड 300 स्टार्टअप्स. तो हमारा जो मेंटोरशिप का जो सेशन है दैट्स वेरी कंटिन्यूअस, मतलब प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन. तो हम कोहर्ट में जो है सो यहाँ पे काफी जो है सो मेंटोरशिप ट्रेनिंग करते हैं. सो ये मेंटोरशिप ट्रेनिंग जो होता है वो 2 तरीके का होता है. एक तो होता है कि 1-to-1, मान लीजिए एज ए स्टार्टअप मुझे कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहा है अपने स्टार्टअप को स्केल करने में, जैसे मैं पैकेजिंग नहीं समझ पा रहा हूँ, या फिर मैं फाइनेंस नहीं समझ पा रहा हूँ, या फिर मुझे ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ चीज चाहिए, तो वो हम लोग 1-to-1 करते हैं. या फिर ग्रुप सेशंस हमारे यहाँ जो है सो वीक में 2 से 3 सेशन होता है, जिसको इट्स ओपन फॉर एवरीवन, राइट. चाहे वो बी हब का स्टार्टअप हो, चाहे वो CIMP BIF का हो, चाहे वो किसी दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर का हो, सो एनीवन कैन कम एंड ज्वाइन. तो उसका हम लोग जो है करते हैं. दूसरा सपोर्ट जो हम लोग करते हैं यहाँ पे बिहार में, टैलेंट दैट इज अ वेरी ह्यूज चैलेंज. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिसोर्स पूल क्रिएट करते हैं. रिसोर्स पूल, व्हेन आई से रिसोर्स पूल, व्हाट आई मीन इज कि आपने सोचा कि आप स्टार्टअप करेंगे, राइट. उसके बाद आप सबसे पहले जब जाएंगे अपना लोगो डिजाइन करने, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, सो हैव वैरायटी ऑफ पीपल गिव यू डिफरेंट रेट्स. हो सकता है कि अगर वो लोगो आपका डिजाइन कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट नहीं हो, वो हो सकता है कहीं से कॉपी पेस्ट हो, इसका पेटेंट भी नहीं करा पाए, राइट. तो हमने क्या किया हुआ है, हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने जो है सो निफ्ट पटना के साथ टाई अप किया हुआ है, जो कि सारा स्टेशनरी आपके साथ बैठ करके आपके मूड बोर्ड, स्टोरी बोर्ड, इन सबको समझेंगे और उसके हिसाब से आपके लोगों को जो है सो डिजाइन करेंगे. नॉट ओनली लोगो बट अदर स्टेशनरीज ऑल्सो. आपका लेटर है, उसका फिर हमने CA फर्म्स के साथ किया हुआ है, जो कि सब्सिडाइज रेट पे हम उनको इम्पैनल करते हैं और वो सब्सिडाइज रेट पे जो है सारे सर्विसेज देते हैं. सो एज अ स्टार्टअप उनके लिए सब सारा चीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में उनके पास पूल है, उनके पास डिजाइन एजेंसी में पूल है, उनके पास दूसरे सभी चीजों पूल है. सो रिसोर्स पूल क्रिएशन इज द सेकंड थिंग दैट वी डू. थर्ड जो है वो हम लोग उनके लिए जो करते हैं वो करते हैं मार्केट लिंकेज का काम. मार्केट लिंकेज मतलब तो ऑलरेडी ये लोग कर रहे हैं. सॉरी. हाँ, सो मार्केट लिंकेज का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कहता है कि नहीं ठीक है, हमें जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में कुछ हमें हेल्प चाहिए, राइट. तो हम क्या करते हैं, उनके पोस्टल डिपार्टमेंट के हेड को जो है सो वो बुलाते हैं, उनके साथ सेशंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो दूसरे स्टार्टअप्स के लिए कैसे बेनिफिशियल. तो विद इन आवर कैपेसिटी जो भी पॉसिबल होता है हम उनको लिखते हैं, हम उनको मेल करते हैं, टॉक टू देम. तो हम लोग एक स्टार्टअप का और उनका जो है सो एक ब्रिज की तरह क्रिएट करते हैं. द लास्ट हम लोग फंडिंग सपोर्ट क्रिएट करते हैं. तो फंडिंग सपोर्ट में अभी जैसा कुमोद सर ने बताया, राणा सर ने बताया कि बिहार गवर्नमेंट का ही जो भी फंडिंग सपोर्ट है वो यहाँ के स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा है. और प्री सीड फंड है, सीड फंड है, उसका मैचिंग ग्रांट्स है. तो अभी जो है सो वो मतलब इसी इसमें कर रहे हैं. बाहर के इसमें जो है इन्वेस्टर्स को अभी उतना नहीं ला पा रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग फॉर दैट, और हम लोग उसको जल्दी ही करेंगे. तो ये प्रोसेस बहुत स्मूथ है, मतलब इंक्यूबेशन हमारे इंक्यूबेटी बनने के लिए जस्ट हैव टू फिल अ फॉर्म एंड देन थिंग्स स्टार्ट विद इन अ वीक और सर. सॉरी इन बिटवीन में बोल दिया कि ये लोग आप लोग खुद ऑलरेडी कर रहे हैं. सो मेरे कहने का मतलब ये था कि see even before we know this Ravi sir, so we were already in process. One of my friend has started this end-to-end startup solution. Okay, it was not for Bihar, but it was registered in Jharkhand, and then it is for pan India, and now to we will do many things for Bihar itself. Okay, so that start with company registration, legal assistance, IT services, web or app development, digital marketing,
or audit and advisory support, office space, or whatever assistance they need. If they wanted to have due diligence, that also we do. Investor, if they wanted investor, we have investor like Pathak ji. Plus up to IPO registration we do. Okay, so one of my friend has just recently started. So anyway, we started for Pan India and for Globe, but yeah, definitely we are going to use a startup Bihar as well to take it forward. Good. जैसा राजीव ने बताया कि हम लोग ये जितनी भी चीज कहे ये सारा चीज हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ हम लोग पूरा पुल बनाए हुए हैं, रिसोर्स पुल बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि CIMP जो है वो मेंटरशिप करता है यहाँ के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। तो उसके अलावे जितने भी आपको बड़े वेंचर फंड हैं उन सब मेजॉरिटी के साथ हमारे MOU हैं। वो वेंचर कैटलिस्ट हैं वो या वो जीटो हैं या हमारा ये जो शारजा इंटरनेशनल इनोवेशन पार्क है उसके साथ है। सबके साथ हम लोगों ने अब माने मेजॉरिटी जो बड़े प्लेयर हैं T-Hub हैं इन सब के साथ हम लोगों ने काफी अच्छा जो है एक इकोसिस्टम बना रखा है। तो जहां भी अगर हमारे इंक्यूबेटीज को किसी भी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए होता है या कहीं पे कोई किसी तरह का हेल्प चाहिए होता है तो CIMP उसको बिल्कुल मदद करता है। जो यहाँ पे मैं तो बल्कि आज मुझे हमसे एक गलती हुई, हमें इसमें हमारे यहाँ के इकोसिस्टम का हमारा कोई इंक्यूबेटी उसको भी रखना चाहिए था क्योंकि वो आपको बेटर आंसर दे सकता था। हम तो बोलेंगे ही सर, मैं चाहूंगा कि आगे हम लोग जब भी करेंगे तो जो हमारे इकोसिस्टम के जो अच्छे कोई स्टार्टअप होंगे उनको हम रखेंगे जिससे कि आप ये समझ पाइएगा, आप जान पाइएगा किस तरह से। हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे स्टार्टअप हैं। अभी पता नहीं दिव्यांशु जी वहां पे है नहीं तो दिव्यांशु जी खुद इस पे बता सकते थे क्योंकि वो हमारे यहाँ से काफी जुड़े हुए हैं और यहाँ पे वो काफी क्लोजली काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो और ब्रजेश 1-2 बार आया है तो शायद ब्रजेश को कुछ थिंकिंग यहाँ के बारे में थोड़ा सा वो समझ पाया होगा। लेकिन आपको बता रहे हैं कि बहुत ही मतलब हमारा जो यहाँ का इकोसिस्टम है वो बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है। हम अभी बेंगलोर की तरह हमारा नहीं हुआ है लेकिन हम बहुत जल्द जो है वो मतलब उस ओर जा रहे हैं। थैंक यू कुमार जी। बाकी लोग दीपक जी हैं, सुशांत जी, मयंक जी, ब्रीफली हम लोग सब एक दूसरे को जाने। दिस इज अ प्रील्यूड टू द बिगर फिजिकल मीटिंग दैट विल बी प्लानिंग इन बैंगलोर। जरूर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी जस्ट सर बात ही कर रहे थे कि कोई ऐसे होने चाहिए जो बता पाते हैं, तो कुमोद सर का हम बोलना चाहते हैं कि सर एकदम हम ज्वाइन कर लिए। सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोडक्शन करते हैं कि मेरा नाम मयंक गुप्ता है और हम लोग ने 2021 में एक कंपनी खोली थी, एक स्टार्टअप किया था बिहार से ही रहकर जिसका नाम था सेवा सिटी ऐप। सो सेवा सिटी इज अ सुपर ऐप फॉर Tier 3 सिटी। सो वी आर बिल्डिंग अ ऐप विच विल हेल्प the entire city through a single platform. So it's a city discovery platform. Okay. And we have started like from the 2021. And I can tell you from here only, I think we have completed, we have already raised the seed fund from the state government. And at that time, Kumod sir, the one, he was first person who took our interview. With some more team member. And secondly, when we took the post, that fund was from state of Bihar, Mayank? State of Bihar only. Very good, excellent. And the second important thing, when we took second 15 lakh rupees, at that time, Rana sir was the one who took our interview and who selected us for this. So I can tell you very clearly, I think sir also want someone should answer the questions. So I can clearly sell to Manish sir and Brajesh sir. Now the entire process is very different. हम लोगों ने 2021 में भी फॉर्म भरा था स्टार्टअप बिहार पे, उस समय भी हम लोग सेलेक्टेड हुए थे। DMI पटना को इंक्यूबेटर बनाया गया था, बट ये प्रोसेस बहुत लंबा गया। सेलेक्ट होने के बाद भी हमें फंड नहीं मिला।
बट अभी का जो प्रोसेस है वो बहुत क्लियर, बहुत स्मूथ और बहुत ट्रांसपेरेंट है। ये लाइक ऐसा नहीं है कि कोई हमें स्पॉन्सर करता है ऐसी चीजों बोलने के लिए, बट हमें जब ये बोलते हैं तो ये हमारे अंदर से सच्चाई निकलने लगती है। हमने देखा कि किस तरह पिछले साल मार्च में हमने अप्लाई किया, बहुत महज 45 डेज के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और पैसे डायरेक्टली अकाउंट में। हम लोग इसके साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड के पास भी जाते हैं, इवन वो लोग भी बहुत टाइम लेते हैं। और ये बहुत लाइक ऑनेस्ट फीडबैक है। अगर आपको लाइक ज्यादा जानकारी चाहिए, बीहब में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और वो आपको लाइक बता पाएंगे। अभी करंटली बैंगलोर में रह रहे हैं क्योंकि हमारा बिजनेस रिमोट है, दूसरे दूसरे सिटी में चलता है, सो हम लोग दूसरे दूसरे सिटी में ट्रैवल करते रहते हैं। बट ये है जो क्लियर पिक्चर है कि आई थिंक बहुत स्मूथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, और वो भी अलग अलग फील्ड में। मतलब ऐसा नहीं कि केवल फंड करती है गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली सर ने बताया जहां पे बिहार गवर्नमेंट लॉन्च किया इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट? हम बताना चाहते हैं कि अभी अगर हम लोग किसी इंटर्न को हायर करते हैं तो उसमें उसकी सैलरी में भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हेल्प कर रही है। मतलब आई कैन टेल वेरी ऑनेस्टली विथ एवरीवन, देयर इज नो एनी स्टेट I explored everywhere. I complete my bachelor's from Delhi. I completed my job from different state, and I can tell you like this is not possible in any state as of now. So I think you can like also imagine कि अगर आपको इंटर्न हायर करने में उनकी सैलरी में भी अगर गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, so you can imagine the end to end मतलब सपोर्ट that we are offering. सो इसके बाद भी अगर किन्हीं को कोई कंसर्न है, सो लाइक दे कैन आस्क। सुवर्ण काल इसी को बोलते हैं मयंक जी, द गोल्डन एरा। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। देखिए, हमें पता है बिहार कैसा था, क्या है, और ऐसे ही लोग हैं जो इस नैया के केवैया बन सकते हैं। हमें पता है बिहार कैसा है, लोग कैसा, माइंडसेट कैसा है, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन, हमें पता है कि हमारी कई लोगों से कई एक्सपेक्टेशन है, बट दीज आर द पीपल हु आर बीइंग वेरी मैग्नेटिक। एक ये लोग इकोसिस्टम बना रहे हैं, जितना इनका काम है वो कर चुके हैं। जैसे मयंक भाई हो गए, हम लोग हो गए, हम लोग को आपस में आप बिठा दो, बाकी समस्या का समाधान हम लोग आपस में कर लेंगे। जब घर में अकेले रहते हैं, रिश्तेदारों से क्या बात करें, किससे पूछें, बताओ आप, किससे जाएं, किससे पूछें। और सर लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्शन है, अथॉरिटी से कनेक्शन है, किसी से भी बात करना है। ये लोग खुद वहां पे मस्त मौर्य लोक में बड़ा प्यारा सा ऑफिस बना हुआ है, वाईफाई इंटरनेट सब लगा हुआ है, वहीं पे आके अपना काम कर रहे थे। और जो भैया का सवाल था कि अभी मैं खुद, हम लोग का अपना इकोसिस्टम में डिस्कशन होता रहता है, अब ये हमारी जिम्मेवारी, एक आदमी क्या क्या करेगा बताओ, ठीक है, ये अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम सेगमेंटेशन करें कि एग्रीटेक के कौन बनते हैं, मेडिकल के कौन बनते हैं, फंड रेजिंग के कौन बनते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कौन है, पैकेजिंग के कौन है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट थिंग्स। और इस तरह का फ्रीक्वेंट सेशन होगा, जैसे रवि सर भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है, कि जस्ट इट्स ऑल अबाउट इनिशिएटिव। कंप्लेन करना, उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन खुद से एफर्ट डालना, लोगों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अच्छी बात है। तो सर मतलब बहुत सही काम हो रहा है, हम जिसको जो बोलना है बोलने दो भैया, बहुत सही काम हो रहा है। आईएएस और अधिकार में ना वो होता है सेक्रेटरी कुछ बोलते हैं, सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं भैया, वो सामने से आके पूछते हैं बताओ क्या दिक्कत है, किससे उम्मीद कर सकते हो बताओ। वी नीड दीज आर द किंग मेकर्स। मैं बोल रहा हूं अभी यहाँ पे 100-200 करोड़ हम लोग ही क्रॉस कर जाएंगे। दीज आर द एक्चुअल किंग मेकर्स, ठीक है। बहुत सही सिस्टम है, दिस इज अ गोल्डन टाइम। आपस में हम लोग सहयोग करें, खामियां सब में होती हैं, मिलजुल के काम करें, बहुत प्यारा काम होगा। आई एम डन स्पीकिंग, मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, इग्नोर नहीं, कोई बात नहीं है। उदित जी, आदर्श जी, नीरज जी, अभिषेक जी, गौरव जी, सब लोग बोलिए। हाँ, एक चीज हम और बोलना चाहेंगे, जो हमारे बेंगलोर से जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक चीज आप यकीन रखिए कि अभी यहाँ पर जो CIMP है या CIMP BIF है, वो अगर आप यहाँ पे मतलब कुछ भी करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग पूरी ईमानदारी से आपको मदद करेंगे। जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसा होता है जो लगता है कि कहीं पर आप बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां पर अगर कुछ पहुंचाना है वो भी हम करेंगे। आप सिंपल सा समझिए कि हम यहाँ पर जो भी हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, हम उन सबको जेन्युइनली मदद करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं।
और हम लोगों का पूरा इंटेंशन, हम लोग गवर्नमेंट बॉडी हैं और हम लोगों का इंटेंशन यहाँ पर पूरा क्लियर है। हम चाहते हैं कि यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड हो और उसके लिए हम लोग हर कुछ कर रहे हैं जो भी संभव है। दीपक जी, सुशांत जी, गौरव सर, अभिषेक सर। हाय रवि जी, हेलो। Go ahead. हाय रवि जी, थैंक यू सर। एक बहुत अच्छा सेशन था मेरे लिए ये, और लर्निंग भी रहा कुमित सर और आप लोगों के साथ जुड़कर। सर मैं बेसिकली मेरा नाम सुशांत है, मैं आरा से हूँ, बिहार से, एंड स्कूलिंग भी वहीं से हुआ है सर। मैं एक सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड ACCA मैं दिल्ली से किया हुआ हूँ सर। और मैंने बीडीओ में जॉब किया है, बीडीओ टॉप 4 में आती है सर वहाँ पर गुड़गांव में। एंड पोस्ट दैट आई जस्ट मूव टू बैंगलोर लोकेशन सर, सो आई स्टे हियर अराउंड 1.5 year and 2 years, राइट। सो मेरा एक स्टार्टअप है सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, राइट। सो आई हैव ऑलरेडी लाइक द 55 और 60 प्रोडक्ट्स है जिसमें हम लोग एलोपैथ फार्मा में ऑलरेडी डील कर रहे हैं। और वहाँ पर बिहार में हम लोग अराउंड 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी हमारा मेडिसिन जो भी है सप्लाई होता है वहाँ पर। एंड बैंगलोर में मैं सर सेल्फ कर रहा हूँ, साउथ बैंगलोर का जो एरिया है ये कवर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सर टैबलेट, इंजेक्शंस, लाइक द सिरप्स एंड ऑल थिंग्स है। बट अभी राइट नाउ वी आर इन बूट स्टेप सर, राइट। सो नियर फ्यूचर थोड़ा सा बिहार में, जैसे ब्रजेश सर बोल रहे थे कि वो बेसिकली उनका क्वेश्चन डिफरेंट वे में था, मैं उसको थोड़ा सा और इजी वे में करना चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा एक, अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा माइंड सेट का उस लोकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हमारे पास, क्योंकि हम लोग रूट लेवल पर काम किया है, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हुए हैं, राइट। सो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते नए चीजों को जल्दी से, राइट ना। सो वो एक इशू है सर उधर थोड़ा सा। बट हाँ, धीरे धीरे जो जनरेशन गैप है उसको हम लोग अभी जैसे नई जनरेशन आएगी तो वो फील कर रही है सर, तो उसके लिए हम लोग रेडी है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ ठीक है, जैसे बैंगलोर लोकेशन है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ लोग से हमें सपोर्ट मिलता है, जैसे बहुत ग्रो करने में बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं हम लोग चीजों के लिए। जैसे अभी बहुत सारे जो हमारे साथ दोस्त लोग थे वो लोग बहुत सारी चीजों में बोले कि बैंगलोर में ये सब सारी चीजें मिल जाती है। नो डाउट कि ये एक मेट्रो सिटी भी है, और यहीं सर अगर बैंगलोर से हम लोग थोड़ा सा आउटर साइड में जाएंगे तो हो सकता है कि 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर, तो सेम केसेस वो भी हो सकता है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि नियर 5 to 10 years में बेटर होगा बिहार के लिए, और बिहार से जो भी लोग एजुकेटेड होके और बिहार के लिए काम कर रहे हैं। सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है सर ये रवि सर कि आप लोगों से जुड़े हम लोग, और नियर फ्यूचर में जरूर हम लोग कनेक्ट करेंगे आपसे, और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है सर। जब भी सेशन होगा मैं ज्वाइन करूंगा आपसे। थैंक यू सुशांत जी। बाकी कोई, गौरव सर, दीपक जी, अभिषेक जी, शायद आप मखाना ट्रेड से संबंध रखते हैं, अभिषेक जी। एंड रवि जी एक और चीज ऐड करूंगा, अभी कोई हमारे फ्रेंड थे जो आई थिंक एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, सो मैं भी उनसे बोलूँ कि सर मैं एग्रीकल्चर में भी एक स्टार्टअप कंपनी है वहां से जस्ट अभी लेफ्ट किया हूँ, बिघाट एग्रो करके, मे भी आप नाम जानते होंगे। सो इंडिया गेट पाइनर और ग्लोबल में मुझे लगता है कि टॉप 4 या 5 में है, और फंडिंग उनका अच्छा खासा है। तो मैं वहां पर भी एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर रह चुका हूँ, और अभी भी उनको मतलब एज ए पार्ट टाइम मैं वहां पर सपोर्ट करता हूँ उनको। सो अगर कुछ जुड़ना होगा तो प्लीज लेट मी नो सर। We'll give you a good news about agri-tech startup sometime in 10-15 days. They're planning something. We'll let you know. एग्रीटेक में सर रवि सर, मैं वहां से बिहार में 1-2 बंदे हैं, मैं ग्रीन सप्लाई करके उनसे मैं कनेक्टेड हूँ, मैं उनको हेल्प भी किया हम था बताएंगे आप एग्रीटेक बारे में, हम कुछ योजना बना रहे हैं बिहार के लिए, हम लोग मुझे मिलकर आपको बताएंगे थोड़ी जी 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 जरूर अभिषेक सर बोला जाए। हाय रवि जी, हाय रवि जी, हाय सर, गो अहेड। या हाय एवरीवन, हाय टीम फ्रॉम CIMP BIIF। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं बैंगलोर से हूँ। वैसे तो चूंकि स्टार्टिंग से बात भागलपुर और जर्दालू आम की हो रही थी, तो मैं भागलपुर से कनेक्टेड हूँ, और भागलपुर में आज तो भागलपुर में ही हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो तो आप तक लौटने के समय जरूर CIMP BIF होके जाए। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ पुणे में जो भी यहाँ से पटना जा रहा है या उधर जा रहा है, एक दिन CIMP BIF का गेस्ट रहे। They have suites built for all of us. You can stay there, interact with them, and then come back. I will surely, if I am going through Patna, I will surely use the facility and surely meet the faculty out there. जरूर करूँगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। I am an MBA grad from University of Wales. मैंने करीब 18 साल प्रोफेशनल काम किया है। I started as a sales trainee
with Marico Industries, and finally was in the board of directors of Philips Bangladesh, Philips Electronics Bangladesh, and then I started my own startup in Bangalore. मैं बैंगलोर बेस्ड हूँ और मेरा स्टार्टअप बहुत सारे चीज़ों से इन्वॉल्व है. इनिशियली आई वाज इनटू एक्सपोर्ट्स, तो मैं बैंगलोर बेस्ड मेरा अपना एक्सपोर्ट हाउस है जो इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से सिंगापुर, इंडिया से अफ्रीका अप्लायंसेस एक्सपोर्ट करती है. In the last 4 years post COVID, for some reasons or other, I was more involved or interested in doing something for the state of Bihar, and that is what brought me back to Bihar for some reasons or other. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिहार बेस्ड हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बैंगलोर बेस्ड बिहारी हूँ. So that's what I mean for with that. मैं F&B के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, right from being a business investor to a startup advisor, mentor, to having my own startup. So I run a restaurant in Calcutta and Siliguri, a kebab restaurant. I run, or I'm a part of a Makhana unit based out of Darbhanga. I'm a part of a handicraft handloom unit based out of Patna. I am involved with a sattu making health drink based out of Bhagalpur. That's what I do. And I'm more interested in being a part of the Bihar startups setup so that I understand the ecosystem much better. क्योंकि जितनी बातें मैंने सुनी उस सारी बातों में मुझे ऐसा फील हुआ कि लोग ये कह रहे हैं यदि आप बिहार से हैं तो और आप एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे. ये जो फोरम है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ या जिस फोरम से मैं आता हूँ, ये लोग पटना आके बस तो नहीं सकते, बाकी जगह तो छोड़ दें. सो वो जब बैंगलोर के नजरिए से पटना या एनी पार्ट ऑफ बिहार देखते हैं, दे लुक इट एज अ पर्सपेक्टिव कि ढीला है, स्लो है, which needs to change, and I'm sure that is what people are working towards. So probably I can be a part of the ecosystem in helping and developing this ecosystem as well as helping my startups, wherein लोगों का जो नजरिया है, जो पाठक जी चाह रहे थे या ब्रिजेश जी कह रहे थे कि जो नजरिया है टुवर्ड्स बिहार वो चेंज होना चाहिए, जो लोगों का बिजनेस का करने का तरीका और देखने का तरीका है वो चेंज होना चाहिए. सो आई वुड बी हैप्पी पार्ट ऑफ दिस एंटायर फोरम इन द फ्यूचर. Great. Anybody else? Gaurav ji, Neeraj ji, Yeah. Adarsh ji. First of all, I would like to thank you, Ravi ji, Manish ji, and entire CIMP team. So this session was really useful to me. Got to know many people, what all things are going on, and how government is helping in startup in Bihar. So my short introduction is like I have been in Bangalore from past 15 years, and मैं एक्चुअली बिहार में सहरसा से हूँ, और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग सब कुछ बैंगलोर में किया, एंड आई हैव अराउंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू टेक इंडस्ट्री. और हमारे पास कुछ आइडिया है, एक्चुअली आई हैड डिस्कस्ड विद मनीष जी आल्सो, एंड so we are like evaluation phase. We are evaluating some of the ideas and feasibility of it, and how much it is possible, how much scalable it could be, and the idea whether it is unique or not. So those kind of things phases we are going into currently. So once we will evaluate our ideas, then mostly like Manish told me that what you will do after you evaluate the ideas and all those things. So now we know the forum and the place where we can contact and take it forward. So yeah, thank you all for keeping this useful session. Yeah, anybody else? Neeraj sir, Adarsh ji, Udit sir, Deepak ji. जी बहुत बहुत धन्यवाद सर. ये सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, और दिमाग में काफी सारी उलझनें थी कि अपने पास जो कुछ छोटे मोटे आइडियाज हैं उन्हें कहाँ प्रेजेंट करूं. मैं जितनी बात समझ पा रहा हूँ वो किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सही है या नहीं. तो मुझे लगता है कि अब मैं अपने आइडियाज को लेके आप लोगों के पास आ सकता हूँ और आप लोग मुझे सही राह दिखा देंगे उस पर कि नहीं नीरज तुम जो सोच रहे हो ये इस तरीके से सही नहीं होगा, सही रास्ता आप लोग दिखाएंगे. तो डेफिनेटली मेरा विश्वास बढ़ा है अपने आइडियाज को लेके, और मैं इस पे थोड़ा और काम करूंगा, और फिर मैं डेफिनेटली आप लोगों से मिलूंगा और देखते हैं इस पे हम क्या कर पाते हैं. थैंक यू.
Udit ji, Adarsh ji. Hello everyone, this is Adarsh here. I'm basically from Saharsa, Bihar, and I'm here in Bangalore from 2012. I'm into teaching field, and I used to provide the skill development classes to all the school students, especially like robotics, Python, coding, all interactive classes, those which are makes the students, especially school students, very broad, and it means increases the students' mindset, especially toward the technology and upcoming trend. So I started this in Bangalore in 2013 during my college time, especially my teaching career as well as my this skill development. I have a good well established. I can say that I have a well established business here in Bangalore. But I tried to do this in my hometown in my Saharsa, whatever the schools from where I passed out. I tried to doing this thing, but unfortunately, definitely that team building, which was important, the mindset of the people, what I got to know from here, that we are facing a lot of issues at that place. And I'm very glad that now I'm on the right platform from where I will get that connections of the same mindset people. And definitely it will help me a lot to build my business here in same thing in Bihar. Especially I want lots of what I faced during my school time, that lots of opportunities what right now in Bangalore students, the school students are getting, that is still not available in that particular area, especially the tier 3 cities. So I'm working on that grassroots level on that part, and I love to connect with you people, and even I need some more help also. Even if anybody is in Bangalore, if they can help me a little bit exploring more in this, because this is again a bootstrap company. Everything whatever I have to do, I did of my own. All the scratch from running ads to hire somebody. Everything I did it of my own. But I know that with my two hands I can't build a great business, right? So I need that connections. I need that team also, where I can explore this business in other parts of Bihar and in the full states especially. So this is what is my brief. But I'm glad that I'm here right now. I'm connecting with you people. I got to know a lot of things about the mindset, new mindset, what you can say. Even the age doesn't matter. The mindset is very new. I can see that. So I'm blessed to have this thing, to be a part of this meeting. Thank you. Anybody else to speak? Or we can yeah. Yeah, Deepak ji, go ahead. Yeah, so yeah, this is Deepak. Good afternoon, everyone. Thank you, Ravi and CIMP team for setting up this call. So a little introduction about me. So I belong to Gopalganj district of Bihar, and I'm staying in Bangalore. So I did schooling from Bihar and then came here in Bangalore for engineering. I completed engineering now. Me, Gauravji and Manishji, we are working together for startup where we are in ideation phase right now. So probably after the ideation phase, we'll be reaching out to you guys for any help we need in future. So thank you so much. Hello. Sorry, I think I had some network glitch. Yeah. I was saying this call is really helpful. Now we have the idea and we know what all supports we can get from Bihar, which was very difficult to understand. And I think this is going to help us a lot. Thank you so much. I think we have concluded. There's nobody else to speak. We can conclude, Manishji, now. Yeah. So we have other people as well, but due to some time commitment, they left. Okay, we were having around 18 to 20 people. Many of them are doing. Brijesh, Adarshji, Brijesh wants to contact with you. We have sent in a message, so you can contact him, I believe. Yes, sir. I will do that. Yeah. And also, you guys. Vote of thanks. Pardon, Rajiv sir? Yeah, you can present your vote of thanks. You are the only person left now.
you know. So requesting for your vote of The thanks. most the work is called giving vote of thanks, but perhaps is the most thankless job to be done. Anyway, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके। जैसा मैंने मैसेज में भी लिखा था, CIMP स्टार्टेड इनिशिएटिव कॉल्ड आइए जुड़े बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ। इस क्रम में हम अलग अलग इकोसिस्टम के लोगों से चर्चा करेंगे, अलग अलग लोगों से चर्चा करेंगे। पुणे में चर्चा किए, बैंगलोर चर्चा किए, हम हैदराबाद में भी सिमिलर एक चर्चा। आप लोग के कोई मित्र अगर हैदराबाद में हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। आप लोग के अन्य मित्र अगर बैंगलोर में हो तो जो ग्रुप बनाया गया है मनीष जी उसके एडमिन है, मैं उसका एडमिन हूँ, आप लोग उनको उस ग्रुप में जोड़िए। और ये ग्रुप का एक सिर्फ यही एक उद्देश्य यही एक नहीं है कि आपको बिहार से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य ये भी है कि आप लोग जहां पर हैं वहां पे आप लोग जितने हैं उन लोगों भी एक आपसी सहयोग करके आप लोग का इकोसिस्टम को भी बहुत सुदृढ़ बनाया जाए और बहुत सफल बनाया जाए। सो इट्स नॉट ओनली दैट unless you are sound in yourself, you are secured in yourself, you will not be in a position to extend your expertise to Bihar. So the intention of this is not only to support Bihar, but it also is to sustain yourself, also to support yourself amongst the peer group in Bangalore. So that's also, it's all about there. Thank you very much. Thank you all of you for coming at a very short notice. We will require one fixed date from all of you in month of July. So we'll be traveling to Bangalore and then we'll have a large gathering. Kumar sir will be there, Anand will be there. So सब लोग रहेंगे हम लोग, तो आप लोग एक डेट सिंपल, लेकिन तब तक हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहे किसी विषय पे। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, जब मैं अभी गांव गया हुआ था तो हमने एक CIMP BIF में एक लीगल सेल खोला है। द लीगल सेल इज एब्सोल्युटली प्रो बोनो फॉर ऑल स्टार्टअप बिहारी फाउंडर्स। उनको किसी तरह के कोई भी लीगल सहायता चाहिए और लोग एक निश्चित दिन पे उनको ओरल कंसल्टेंसी देते हैं और उसका कोई शुल्क नहीं है। There no nothing which is payable. So that's other initiative. Big thank you to you and Startup Legal team for this pro bono initiative. That is there. And big thank you to you also, sir. हाँ, तो वो भी हमारा एक इनिशिएटिव है। तो हमारा बेसिक एक हमारा जो उद्देश्य है कि हम इकोसिस्टम को सपोर्ट करें, अपन जहां हम है वहां और जहां के हम हैं वहां, दोनों सिस्टम को हम सपोर्ट करें और ताकि हम अच्छा सफल हो सके। Thank you, Rajiv ji. I think vote of thanks is I have done the good job to end this meeting, I believe. Wonderfully done, sir. Wonderfully done. Thank you. As Thank you. usual. Thank you very much. जिन लोगों ने पिक्चर लिया है can share it. They should put it on their LinkedIn so that people would come to know. सब लोग अपने LinkedIn पोस्ट पे डालिए, Instagram पे डालिए ताकि ये मैसेज और स्प्रेड हो। ठीक है, CIMP BIF को टैग कीजिए। मैं CIMP BIF का LinkedIn टैग आप ग्रुप पे डाल दूंगा अभी। प्लीज CIMP BIF को टैग कीजिए, राणा जी को टैग कीजिए। कुमोद जी LinkedIn पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो इसी हिसाब से एक्टिव है। एवरी पोस्ट गेट रीपोस्टेड इन जस्ट 2-3 सेकेंड्स। उनको प्लीज टैग कीजिए, राजीव जी को टैग कीजिए, सबको टैग कीजिए ताकि ये मैसेज और स्प्रेड हो, सब लोग इससे जुड़े और लोग जुड़े। धन्यवाद। Thank you so much. Thanks to the entire team at Bangalore also. Thank you. Yeah, Thank you, Ravi ji. Thank you, साहब, दिव्यांशु जी नहीं आ Thank पाए। you everyone. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Thank you everyone. बात Thank you. उनसे हिसाब किताब Thank you, everyone. थैंक यू And अभिषेक। Champaran Hut is always Thank you, available. everybody. Yeah. Champaran Hut is always available. You guys are Yeah, always welcome. Champaran Hut, Mr. Pathak is always available for any meet, started Bihari meet in Bangalore. Yeah. So we are having regular meet there. Yeah. Okay. Thank you. Thank you Thank you, everyone. sir. Thank you. Thank you.